Hello students, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Guys, आज कौन सा डिस्कशन था? बुकलेट. Yes, sir. ओके. तो बुकलेट का गाइस पहले कौन से एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करें? Yes, sir. ओके. यस स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1 में पहला कौन सा करें? 35, 37. 35. Question 10. एक्सरसाइज 1 में which one? So 23rd. 23rd वाला. Someone said 10th also. 10. Oh, एक्सरसाइज 1 ठीक है. 24. एक 31. बुकलेट एक्सरसाइज 1 का पहला कौन सा? 10th. फिर कौन सा है गाइस? 20. After 10th, what was the number? Also 23rd. So 10 के बाद 23rd. After that, 35, 37. 31 also. 31. 35. 31, 35, So can you do 26 as 37, और कौन सा? 26. yes? And 25 also. So 38 and 52. 39. 38, and which one? 39. Yes. So and 52. 52, 47. So 51. 47, 51. So 32. 33. 32, 33, and which one? 47, 22. Yes, sir. 47. 47, 22 also, sir. 22. 22, 22, So 51. 51. And so 36 as well if possible. So 20 also, sir, if possible. 45, sir. 46. 45, 46. Okay. और कुछ है गाइस इसमें? Sir, एक बार 43 because 43. yes, sir. Thank you. अच्छा, 10th के लिए so 10th में जो है in the previous question the percentage of the power transmitted through the heaviest train. तो पावर जो है क्या होता है? 2 pi square f square a square mu v. So if in one medium, एक मीडियम के लिए क्या कांस्टेंट जाएगा? ये भी कांस्टेंट, ये और ये एक से एक मीडियम के लिए कांस्टेंट. पावर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. So if we find power reflected by power incident, this will be simply AR square by AI square. What is AR guys? इसमें AR कितना आया था? What was the AR? हाँ, एक मिनट जाओ, पहले तो ये बताओ कि AR कितना आया था 9th क्वेश्चन में? -9th क्वेश्चन का आंसर क्या था? AI तो आ जाएगा, AI तो 6 है. 9th क्वेश्चन से AR का आंसर क्या आया था? So -2 आया था, I guess. Okay, 2. So 2 square
So this is the fraction of the power reflected is 1/9. So therefore, power transmitted, power incident 8/9 और परसेंटेज में कितना हो जाएगा 8/9 into 100. This will be guys how much? 88.88. 88.88. Okay. ऐसे एक बार आंसर चेक करो. करेक्ट है. ओके ओके. Okay, so it's after 10th, it looks like कौन सा है 20. 20 में ठीक है. 20 के लिए एम्पलीट्यूड बताना है 20 में. वो ये तो फेजर से हो जाएगा. 1 is 10. फिर जो है this is 4. 5/2 phase difference. And this is 7. So इसको क्या लिख सकते हैं 10 minus 7 3 और ये वाला 4. तो रिजल्टेंट जो आ जाएगा 5. ये गया 20. उसके बाद 22. के लिए the maximum wavelength for which the person will receive the maximum sound intensity. No. इसमें जो है पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा. पार्ट डिफरेंस विल बी कितना आ जाएगा. ऊपर बेस ऊपर कितना लेंथ है. Sir, I think वो 21st है. Oh, 21st, 22nd, 3rd, 22nd, sorry. Oh. 22nd के लिए the ratio between the intensity of two coherent sources is 4:1. Coherent sources का जो है the difference of the loudness in between maximum and minimum intensities. तो loudness में बताना है ना. ठीक है. तो एक तो जो है आपका intensity is given as a ratio 4:1. So I maximum is root I1 plus root I2 का whole square. I minimum root I1 minus root I2 the whole square. इसका रेशियो कितना आ जाएगा 3 2 plus 1 3 divided by 9 आ जाएगा यार. और बीटा, सो बीटा इसको 2 बोल देते हैं. तो बीटा 2 क्या होगा इस 10 log I2 by I0 10 log I1 by I0. डिफरेंस निकालना है माइनस. So guys क्या होगा बीटा 2 minus बीटा 1 10 log of A by B I2 by I1 which is 9. ये कैलकुलेट करना पड़ जाएगा. Right, 3 squared. This will be 20 log 3. Log 3. 22nd, guys, you understood? Yes, sir. Yes, sir. 22nd, फिर 23rd. 23rd was there, ना? Yes. No. 23rd was not. नहीं है. 23rd में Quincke's tube experiment. Minimum intensity. ठीक है. Now one of the tube is displaced by 5. During displacement, detector detects maximum intensity 10 times. Then finally, a minimum intensity, the displacement, the wavelength of the sound बताना है. So guys, अगर भी मान लो 5 का displacement करते हैं तो part difference कितने का
क्रिएट होता है वहां पर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर. So during this 10 centimeter, minimum, maximum ऐसा आ रहा है. So maximus ये ऐसे during this displacement अभी मिनिमा है. So guys यहाँ से अगेन वापस मिनिमा. वैसे 10 है ना guys. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है? यहाँ पे फेज 0 होता है, यहाँ पे पाई ना, मतलब डिस्टेंस क्या होता है? λ/2. ऐसे 10 है तो 10 λ/2 is 10 सेंटीमीटर. So lambda is what? 2 सेंटीमीटर. So, but the answer is 1. Oh, so गड़बड़ हो गया. During the displacement, it detects maximum intensity 10 times. क्या मिस्टेक हो गया जय यहाँ पर? So, seems correct. हाँ. So, it seems correct. सर मैंने थोड़े अलग मेथड से किया पर मुझे आंसर बराबर आया. How did you do? सर मैंने मतलब पहला पार्ट डिफरेंस 0.5 लैम्बडा अज्यूम कर दिया और फिर मतलब 10 मैक्सिमा आ रहा है तो वो मतलब 10 लैम्बडा तक जाएगा वो, और फिर और एक मिनिमा आ रहा है तो 10.5 लैम्बडा, और फिर हम एंड में मतलब 0.5 लैम्बडा प्लस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10.5 लैम्बडा कर दिया. नहीं, जैसे यहाँ पर सपोज यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जैसे एक मिनिमा से दूसरे मिनिमा के, सो दैट मींस यू आर सेइंग कि यहाँ पर जैसे 3 पॉइंट्स लिए तो कितने मैक्सिमम आएंगे? 2 आएंगे ऐसा. 4 लेंगे तो 3 आएंगे. ओके, सो यू आर सेइंग कि दिस इज 10 पीक्स हैं. सो 10 पीक्स हैं तो कितने होंगे यहाँ पर? मतलब ये पॉइंट्स 10 पीक्स, और एक एक का ये लेंथ तो λ/2 है, क्योंकि ये 0 ये वाला नहीं, ये वाला जो है. Oh, sir, what I did was like मतलब हम 1 हाँ. लैम्बडा पे एक मैक्सिमा, फिर 2 लैम्बडा पे दूसरा मैक्सिमा, so I just went on adding 1 लैम्बडा each step. ओ, तो यू आर सेइंग नहीं नहीं जय देखो, नहीं नहीं मैत्री, हाँ यार ये 0 कहाँ पे आता है? पाई पे आएगा ना. ये पाई 3 पाई एंड 5 पाई, तो मतलब पाई यहाँ पे फेज है, यहाँ का फेज पाई है, यहाँ का 3 पाई है, तो पाई एंड इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? पाई एंड 3 पाई के बीच का डिस्टेंस. So मुझे नहीं देखो, ये 0 आया मिनिमम. yes sir. 0 पे व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस? 0 पे मतलब When the intensity is 0, the part difference is, so it's मतलब 0.5 लैम्बडा फिर 1.5 लैम्बडा ऐसा होगा ना. in terms of angles के टर्म्स में फेज डिफरेंस कितना होता है 0 के लिए, मिनिमा के लिए? सर ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है. तो अगर मान लो इसको पाई लेते हैं, सो इसको अगर पाई लेते हो तो ये वाला फिर 0 वाला फिर 3 पाई होगा. करेक्ट. ओके सर. हाँ, अब जो है पाई और 3 पाई मतलब फेज डिफरेंस कितना? 2 पाई. 2 पाई मतलब ये डिस्टेंस कितना हुआ? लैम्डा ही हुआ ना, लैम्डा होगा यार. ओके, सो दैट मींस 10 लैम्डा इज 10 सेंटीमीटर. जय करेक्ट है ना ये वाला? हाँ, so I didn't get this. ओके चलो भाई ठीक है. अब चलो हाँ ये बताओ, जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है
यहाँ पे इंटेंसिटी 0 होगी, Yes. वहां का पार्ट डिफरेंस कितना होगा? इस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस Lambda. नहीं, हाँ 0 पे 0.5 lambda. 0 पे 0.5 lambda. नेक्स्ट जहाँ पे 0 आ रहा है वहां पर 1.4. Okay, got it. Like that will be lambda is equal to 10/2. तो ये लैम्डा होगा ना, तो ये लैम्डा हुआ, Yes, sir. 10 लैम्डा हो रहा है, मिस्टेक हाँ sir, got it. चलो गाइस, ये अंडरस्टूड ना ये वाला? सर एक बार लास्ट वाला पार्ट वापस समझाएंगे? तो देखो यहाँ पर जो है भाई, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, मिनिमा है, यस सर। मिनिमा है, मतलब वहां पे पार्ट डिफरेंस कैसा होगा? 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा एंड सो ऑन। यस सर। फिर नेक्स्ट मिनिमा पे अगर पहले वाले में 0.5 हुआ तो नेक्स्ट वाले पे 1.5। यस सर। अगेन उसके बाद वाले पे 2.5 वैसे ही चलता है। करेक्ट, वैसे चलता जाएगा। यस सर। तो अगर कहीं उसमें ऐसा चलता जाएगा तो आप जो है दो कंसेक्यूटिव के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.5 और 1.5 के बीच का डिस्टेंस लैम्डा। यस सर। तो ऐसे उनको अपने पास कितने हैं? 10 है। यस सर। तो क्या होगा बताओ फिर? समझिए सर, थैंक यू सर। 10 लैम्डा। यस गाइस, हाँ फिर बताओ नेक्स्ट। आफ्टर दिस वन व्हिच वाज दैट गाइस? आफ्टर 24 23 कौन सा था? 24 था क्या? नहीं 25। 24 था कि किसी का? चलो 24 में जो है they have asked the ratio of maximum intensities to minimum intensity of superposition of two waves is 49/9. The ratio of the intensity of the component waves, so 49/9 है, तो √I1 plus √I2 का होल स्क्वायर अपॉन दिस इज 49/9। आपको I1 by I2 निकालना है, करेक्ट? सर ओके सर। हाँ, ये आ जाएगा इसका आंसर। यस। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा था? 25 था क्या? 25। Two waves have intensities I, 4I produce an interference pattern. The phase difference between two waves, दिया है π/2 at point A, π at point. The difference between the resultant intensities बनानी है। तो 25 के लिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं भाई। 25 के लिए देखो क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला है I रिजल्टेंट इज I1 plus I2 2 √I1 I2 cos phi naught। तो ए पॉइंट की इंटेंसिटी ए की कितनी है? I 4I, I plus 4I, I 4I, और एंगल कितना है यहाँ पर? π/2, और दूसरे वाले के लिए कितना है? पाई है, ये आ जाएगा गाइस। फिर I plus 4I plus 2 √I 4I cos phi, और आपको दोनों का रेशियो निकालना है। नो डिफरेंस बिटवीन, you want to find difference, so IRV IRA बीच का डिफरेंस निकालना है। ये वाला स्टूडेंट्स आ जाएगा ना? यस। चलो इसके बाद फिर कौन सा था? 25 के बाद So I got 31st. You can answer it if no one has got it. 31st आ गया। Answer.
25, 26. 26 में डाउट है नेक्स्ट. Sound waves of frequency falls on reflecting on the shortest distance from the wall at which the air particle has maximum amplitude of vibration. कैसे करेंगे यहाँ पर? Air particle has maximum amplitude of vibration. So वॉल पे डिस्प्लेसमेंट का तो नोड आएगा, डिस्प्लेसमेंट का नोड. फिर पूछा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल एट व्हिच द एयर पार्टिकल हैज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम मतलब ये सब जो बनेंगे. तो गाइस ये डिस्टेंस कितना होगा? So lambda by 4. लैम्डा. Okay, sir. Yes, sir. I got it, sir. Sorry, sir. ओके. लैम्डा की वैल्यू c by f ना? Hey, yes, sir. Which comes as half. I forgot to divide by 4. Okay, sorry, sir. ओके. तो ये वाला जो है लैम्डा by 4, 1/8. चलो फिर कौन सा है आफ्टर 26? was 26 हो गया. फिर कौन सा 32, 33. ओके. सर हाँ सर 26 क्वेश्चन में आंसर 0 भी हो सकता है ना? मतलब अगर सर एक सेकंड. डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम. डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड. सर आपने लिखा था कि अगर रिजिड बाउंड्री हुआ तो मतलब रेरिफैक्टेड वेव मतलब फेज डिफरेंस 0 होता है रिफ्लेक्शन के बाद. सो अगर नो ये तो नहीं, ये तो वो उसको मांग रहा है डिस्प्लेसमेंट का. अच्छा has देखो यहाँ दिया है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. नहीं सर गॉट इट. हाँ. फिर कौन सा था गाइस? 32 था क्या? 32, 28 था सर. 28. ओके. ओपन ऑर्गन पाइप साउंडेड टुगेदर अनदर जो है ओपन ऑर्गन पाइप L+X फंडामेंटल टोन द बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है. फंडामेंटल टोन 28 में डिफरेंस कर देते हैं F1 minus F2. So V0 by 2L L+X. V0 by 2 common, 1 by L minus 1 by L+X. L+X minus L divided by L into L minus L+X. कितना हो जाएगा ये वाला? अंडरस्टूड सर. मैंने पढ़ाई नहीं की. x is very small then. Oh, X is very small. हाँ Binomial. इग्नोर हो जाएगा ना Lx. Okay. After 28 कौन सा था गाइस? 28 के बाद कौन सा था? 32. सर आप एक बार 32, 31 कर सकते हो. Which one? सर आप 31 कर सकते हो, उसमें अभी भी डाउट. 31 में organ pipe is closed at one end, vibrating in first overtone. ठीक है. Another pipe P2 open end is vibrating in third. They are resonance with a given tuning fork. वो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम कर देंगे ना? दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम कर दो. फर्स्ट ओवरटोन मतलब क्या हो जाएगा? 3V0 by 4L1. और ये वाला जो है कौन सा है? थर्ड ओवरटोन. तो ये कितना हो जाएगा? 4V0 by 2L2. करेक्ट.
Okay, sir. शायद से मैंने wrong values डाल दी. Got it, sir. हाँ 32 में in a closed end pipe of length इतना standing waves are set corresponding to the third water. What distance from the closed end among the following is a pressure node? 30 second. Closed end of pipe और length दिया हुआ है closed end corresponding to the third overtone. Third overtone ऐसा. थर्ड ओवरटोन का मतलब ये हो जाएगा. अब यहाँ पे जो है गाइस आपको पहले तो लेंथ तो दिया हुआ है ना, तो लेंथ दिया है 120 नो 105. So you drew the diagram like incorrect, right? Because pressure antinode will be at the closed end. प्रेशर मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए प्लॉट कर गया. प्रेशर निकालना है ना, सॉरी हाँ सर. प्रेशर निकालना है. मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए प्लॉट कर दिया. तो प्रेशर जो है ये ऐसा हो जाएगा. ठीक है, तो प्रेशर के लिए गाइस ये वाला जो है 3 लूप्स और ये रहेंगे और 1 और ये 2 और ये 3. हाँ सो ये कितना हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 इज 105. इससे लैम्डा आ जाएगा. और इसमें पूछा है at what distance from the closed end is a pressure node. प्रेशर नोड के लिए डिस्टेंसेस क्या होंगे? ये वाला डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, फिर ये वाला डिस्टेंस 3 लैम्डा बाई 4, फिर ये वाला 5 लैम्डा बाई 4, फिर ये वाला कौन सा आ जाएगा 7 लैम्डा बाई 4. गाइस ये ठीक है ना? नहीं, is this correct guys? Lambda by 4, 3 lambda by 4, 5 lambda by 4 and then 7 lambda by 4. Yes sir. इससे आ जाएगा जय आंसर. हाँ yes sir. ठीक है. After 32, 33. So we have to like find the distance from the closed end. So like closed हाँ closed end से तो निकाला. 7 lambda minus 4 से ये distance minus करना पड़ेगा. What is the distance from the closed end amongst the following? Is a pressure node. कौन सा distance होगा ये बताना है. तो closed end से अपन ने निकाला है, lambda की वैल्यू निकाली, lambda So की we found from हाँ okay got it. Pipe फिर next वाला pipe lower end is immersed in water such that length of the air column from the top. Top end has the length 25. The air column is found to resonate इतना जो है इतना. By what minimum distance should the pipe be raised in order to make the air column? वो तो resonance experiment वाला हो गया ना. Okay. चलो resonance वाला experiment. तो आप प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं? हाँ. सर यहाँ पे लैम्डा का अच्छा नहीं सर कुछ नहीं. ओके सो पहला वाला लेंथ जो है कितना है गाइस 25 सेंटीमीटर. तो 25 सेंटीमीटर इज द फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ. तो 25 प्लस L1 नहीं लैम्डा बाई 4 इसमें पाइप्स the air column is found to resonate जो है फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ ऐसा करके दिया नहीं है ना गाइस ये वाला. वो दिया नहीं है, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ दिया नहीं है गाइस. चलो ठीक है. सो ऐसा क्या होता था L1 प्लस E
फिर सो सेकंड में इसमें ई को आई गेस नेग्लेक्ट करेंगे. हो, ठीक है, अगर ई को नेग्लेक्ट करते हो तो फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिस्टेंस जो है लैम्डा बाई 2 तो होता है ना, एक लूप बढ़ जाता है बेसिकली, तो देयरफॉर एक लूप बढ़ गया तो लैम्डा बाई 2 is the increase. How much is the increase? How much is the increase of the length air column? वो तो निकालना है, राइट है ना. तो लैम्डा बाई 2, लैम्डा इज हाउ मच गाइस, लैम्डा कैसे निकालेंगे, c by f. So c by f, लैम्डा की वैल्यू c by f कितनी आ जाएगी, 350 बाई 17 1/5. सो लैम्डा बाई 2 से आपको जो है रेस करना है शिफ्ट, तो गाइस कितना हो जाएगा, लैम्डा 1/5, देयरफॉर शिफ्ट विल बी हाउ मच, 1/10, 1/10 meters. यार ये समझ में आया क्या सबको? Amog, understood this one? What, sir? You all understood now? Yes, sir. Okay, okay. Sir, हाँ, sir, why did we neglect E over here? why did we neglect over here? Okay. So you want to take E. ठीक है, तो उसमें कैसे करेंगे? तो जैसे मान लो So then we'll need one more equation, right? शिफ्ट से नहीं होगा क्या जय? जैसे पहला मान लो L1 प्लस ई आया, हाँ, L1 प्लस ई की कुछ वैल्यू आ गई, जैसे मान लो पहले L1 प्लस ई कितनी आई, 25 आई ना जाए वाली, हाँ, yes. 25. So L1 plus E I 25, which is equal to some lambda by 4, 3 lambda by 4 या 2n plus 1 lambda by 4 है ना. अब L2 नया लेंथ है, पता नहीं है ना, मिनिमम के लिए कितना हो जाएगा, 2n plus 3 E lambda by 4 ऐसा हो जाएगा. So won't L1 be equal to 25? Yes, L1 plus E tuning fork और उसके बीच का डिस्टेंस. नो नो नो, जैसे ऐसा होता है ना जय, ये जो पानी का है, पानी का यहाँ तक भरा हुआ, ये रीडिंग तो L1 है ना. हाँ, so the length of air column will be L1, right? Length of the air column is ये वाला, लेकिन नोट तो थोड़ा ऊपर जाके बनता है ना. हाँ, so 25 will be L1, right? Not L1 plus C. नहीं, हम जो हमारे ट्यूब में तो मार्किंग अलोंग द ट्यूब होता है, तो ट्यूब में हाँ, अगर मार्किंग अलोंग द ट्यूब होता है और स्केल इसी के साथ अटैच होती है, तो हाँ, हम जो so रीडिंग, इसलिए L1 will be equal to 25, right? लेकिन ट्यूब हम जो हम तो लेंथ तो अलोंग द पाइप वही वाला लेंथ मेजर करते हैं, एंड करेक्शन थोड़ा सा ऊपर जाके आता है, करेक्ट. हाँ, so for that L1 will be 25, right? Instead of L1 plus C. ना ना, देखो जो पाइप होता है, पाइप में ही मार्किंग्स होती है कि नहीं बताओ, हाँ, sir. पाइप में ही मार्किंग कैलिब्रेटेड रहता है, पानी का लेवल मेजर करते हो, पाइप में ये वाला पॉइंट 0 होता है ना, ऊपर से ना 0 होता है, यहाँ 0 होता है, और प्रेशर का नोट थोड़ा ऊपर जाके बनता है. Yes, sir. और वैसे भी तो फर्क तो नहीं आ रहा ना, जो यहाँ पर माइनस कर देंगे ई तो कट ही गया, और डिफरेंस आया लैम्डा L2 माइनस L1 लैम्डा बाई 2. Yes. L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L1 प्लस लैम्डा बाई 2, करेक्ट. तो आपको निकालना क्या था यहाँ पर, शिफ्ट ही निकालना है कि वो निकालना था ना? Shift निकालना. हाँ, तो शिफ्ट L2 माइनस L1 ही निकालना है यार, तो L2 माइनस L1 में तो आएगी आंसर. चलो 33 के बाद, सर 35th क्वेश्चन हो गया. 35th हो गया क्या? ओके. So I have So a I doubt. have a doubt. I have a doubt. You do 30th. 35th में डाउट है.
35th में closed organ pipe radius R1, open organ pipe radius R2 have same length L, where resonance जो हो रहा है with a given tuning form मतलब frequency same है. Closed organ pipe resonates in fundamental mode, whereas the open organ pipe first overtone, then ये वाली value then in this first overtone, then ये वाली value निकाल देंगे. Okay. इसमें जो है closed organ pipe resonates in fundamental closed. So closed organ pipe, यहाँ पे pressure का node ये वाला थोड़ा सा ऊपर जाकर. So L and this is E. So यहाँ पर क्या जाएगा? L plus E. समर्थ, हाँ बताओ भाई. L plus E is lambda by 4. और ये जो है ओपन है दोनों साइड एंड करेक्शन, और जो है फर्स्ट ओवरटोन में. समर्थ, हाँ बताओ इसमें हाउ डिड यू डू? E2 ये E1 है. E1 is 0.6 R. So L1 plus 0.6 R1 is lambda by 4, and you have got L1 क्या? LE है. Now here you got L plus 2E2 is equal to lambda by 2. फ्रीक्वेंसी यहाँ सेम है तो सर्वेलेंस सेम ही होगा. अब ठीक है, लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा एलिमिनेट कर लो और E की जगह यहाँ पे लिख देते हैं L plus 1.2 R2 is lambda by 2. Yes, इन दोनों को सॉल्व करना है. Sir, 2 times lambda by 2. कुछ रॉन्ग है क्या? Because it is in the first overtone. Oh, sorry. So, Yes, हाँ. I didn't get 0.6 R1. Which one? 0.6 R1? Yes. Oh, end correction. End correction का distance, remember we did? Okay, so हाँ, थोड़ा सा ऊपर जाता है. Okay, and थोड़ा सा ऊपर जाके होता है outside the pipe, और उसकी वैल्यू होती है 0.6 times the radius of the thin pipe. okay. हाँ. So L plus 2E2, won't that be lambda by 2? ओ, लेकिन ये तो फर्स्ट ओवरटोन में दिया है. Oh, हाँ, okay sir, sorry. 2 लूप्स आ गए. हाँ. 35. इससे आंसर आ रहा है क्या? प्लीज चेक. Yes, sir. ओके. So 35 के बाद कौन सा था गाइस? नेक्स्ट was it 36? $35 के बाद 37 था. ठीक है भाई, somebody please note 37 के बाद. हाँ, 37 के बाद प्लीज कॉपी करो थोड़ा सा. क्या क्या था? 37, 38, 39. Can you do 36? 36 में फर्स्ट ओवरटोन दिया हुआ है is equal to first overtone closed organ pipe is equal to first overtone of ठीक है, open organ pipe. हाँ, तो first overtone क्या हो जाएगा? 3V0 by 4L1 2V0 by 2L2. Correct? So further, nth harmonic of closed organ pipe is equal to mth harmonic of. So एक और रिलेशन आ जाएगा. nth हार्मोनिक तो मल्टीपल होता है. V0 by 4L1 m V0 by 2L2.
Okay, sir. I was using wrong equation. Sorry, sir. So these two equations. इससे आता है आंसर 37 में L1 L2 are the resonance column length. Tuning fork of frequency sounded with resonance, then the distance of the pressure note from end correction निकालना है क्या वाला? 37 में end correction कैलकुलेट करना है. So वही दिया first resonance length वही हो जाएगा L1 plus E is lambda by 4. L2 plus E 3 lambda by 4. तो E की वैल्यू कितनी आती है इसमें? Guys, E की वैल्यू स्टूडेंट्स E की वैल्यू कितनी आएगी? सो उसका तो हम लोग क्लास में फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं ना. यस यस हाँ, इनका तो हमने ये किया ही था. हाँ ठीक है. फिर जो है a closed organ pipe has length L. The air is vibrating in third overtone with maximum displacement every day. The displacement amplitude. Okay, ठीक है. A closed organ pipe length L, third overtone. The third overtone 37. Actually, in the 37th one, I'm getting a wrong answer. Can you please solve it? Okay. ठीक, तो इसका आंसर नहीं आ रहा है. इसमें जो है L2 plus E is equal to 3 by 4 times L1 plus E. तो इससे जो आएगा L2 plus E is equal to 3 by 4. No, sir, 3 by 4 नहीं ना, 4 नहीं आएगा वो डिनोमिनेटर में. कुछ रॉन्ग है यहाँ पर. So L2 सॉरी yes ये है ना लैम्डा बाय 4 की जगह. सॉरी ठीक है. थैंक्स. हम लोग फिर उसके बाद 3L1 plus 3E. So L2 minus 3L1 is 2E. L2 minus 3L1 by 2. Okay. 38. 38 में a closed organ pipe has length of L. Okay, closed organ pipe length L. और it is vibrating in third overtone. Third overtone मतलब 3 loops और ये की वाला. तो ये कितना हो जाएगा 3 lambda by 2. So this will be 3 lambda by 2 plus lambda by 4 plus lambda by 4 is equal to L. तो इससे lambda की वैल्यू कितनी आएगी? 7 lambda by 4 is equal to L. Lambda is 4L by 7. निकालना क्या है? The displacement amplitude distance L by 7. lambda आ गया तो K is 2 pi by lambda. 2 pi और lambda की वैल्यू 4L by 7. कितना आ जाएगा इस वाला K की वैल्यू? 7 pi by 2 क्या? 7 pi by 12 इसके. और एम्पलीट्यूड का फंक्शन क्या होगा इसमें? इसमें एम्पलीट्यूड फ्रॉम द क्लोज्ड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड. ओ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मैंने प्रेशर प्लॉट कर दिया. चलो कोई बात नहीं, ये तो प्रेशर वाला हो गया. डिस्प्लेसमेंट वाला कैसा होगा? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0, 3 लूप्स रहेंगे और एक हाफ दिया. तो x इक्वल टू 0 पे 0 है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू a max sin kx. a max की वैल्यू कितनी है? k. और ये वाला आपको निकालना है a sin k. k की वैल्यू कितनी है? 7 pi by 2l into
और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, you have L/7. करेक्ट है, इसलिए कितना आ जाएगा A, ऑब्वियसली A. A 38, फिर 39, the 39 के लिए so the third resonance length of the tube will be, पहला कितना है L1 is how much, 40. सर एक छोटा डाउट है। तो एक मिनट, the first is L1 plus E, so यहाँ पर जो है 40 plus E, 40 plus E is lambda by 4. First resonance length, second resonance length मतलब जो जाएगा is 122. 122 plus E is 3 lambda by 4. So you want to find इससे जो है can we find E and lambda? इससे E और lambda आ जाएगा और हमारे पास क्या रिलेशन हो जाएगा, L3 plus E is 5 lambda by 4 ऐसा है। ये हाँ बताओ क्या होता। सर रेजोनेंस ट्यूब जब दिया था हमेशा we will take it as closed one क्या सर? Yes, resonance tube में भाई नीचे पानी होगा, पानी में yes closed end. ओके सर, थैंक यू सर। 39, इससे आंसर आ रहा है क्या, प्लीज चेक। फिर कौन सा था भाई? So can you do 40 and 41 as well? 40 और 41, Yes. ठीक है guys, ये वाला पूरा ये नोट करो, मेरे को इतना पेज पीछे आने पड़ रहा है, सब जो बाकी हैं। Sir, I took the screenshot. कोई आप टेक द स्क्रीनशॉट। 40 और 41, 40 के लिए जो है ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी 10 beats per second vibrating with a sonometer string. When the tension in the string is increased slightly, it produces 11 beats per second. वो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो है a tuning fork produces 10 beats per second when sounded इतना, जैसे अब जो है ट्यूनिंग फॉर्क और फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फॉर्क 280 हर्ट्ज। अब स्ट्रिंग के पास दो पॉसिबिलिटीज है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग 10 बीट्स 270 हर्ट्ज 290 हर्ट्ज। फिर जो है व्हाट यू आर डूइंग, व्हेन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड, टेंशन इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, बढ़ के मान लो यहाँ 272 हो गया, तो गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ेगा, ये ठीक रहेगा, बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ेगी। So this is the frequency of the string is 290. Correct, guys? 40th का आंसर, is this correct? Yes, So how did you conclude 290? नहीं, अगर मान लो if you taken 270, अगर टेंशन इन द स्ट्रिंग बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा, 270 से कम हो गया 269 268 हो गया। अब उसका ट्यूनिंग फॉर्क के साथ Sir, if we'll increase the tension, then frequency will increase, right? So like 271, 272 just हो 271 हो जाएगा। ओह यस 270। हाँ सर, तो उससे एफ भी कम हो जाएगा। नहीं, जैसे 271 होगा, हाँ जाए तो गैप में फिर तो 9 आ जाएगा ना, 9 बीट्स। yes, तो yes, the 290 होगा। यहाँ पर ये तो फिर नहीं हुआ, ये वाला जो है मान लो ये पढ़ के 291 हुआ, तो ये मैच हो जाएगा ना 11 में। हाँ चलो, ये तो हो गया 40 के बाद। फिर नेक्स्ट कौन सा था?
So 43rd. 43rd. So 45th you can remove मेरा solve हो गया. Okay. 43rd में the speed of the sound in a gas in which two waves of wavelength are produced. Oh, the speed of the sound in gas in which two waves of wavelength produce 6 beats per second. Speed निकालनी है. वो beat frequency f1 minus f2 कर देते हैं. तो Yes, sir. I did the calculation, but my answer is not matching. So क्या आ जाएगा? V by 1 minus V by 1.02 is equal to 6. इससे Yes, कैसा sir, I did this. Approximately. approximately कितना आता है? So 356 ना? वो approximately हाँ, 356 है. So answer is का 306 होगा. Yes, sir. Yes. Oh, 306. sorry, sir. I made a calculation error. Sorry, sir. Okay. By 43 के बाद फिर next So 46th. 46. 46 में जो है source and observer both start moving simultaneously from the origin along the x-axis and the y-axis. Speed of the source is twice the speed of the observer. The graph between apparent frequency बतानी है. सर इसमें तो एक ही ग्राफ हो सकता है. इसमें जो है क्यों कौन सा होगा? हम वो कैसे क्या? सी होएगा क्योंकि दोनों both are moving away from each other, तो डिक्रीज ही होएगा विद टाइम. तो इनिशियल के रेस्पेक्ट में ओके इनिशियल के रेस्पेक्ट में यू आर सेइंग ना. हाँ इनिशियली एफ नॉट है. यस सर. ओके हाँ यार ये भी सही है. ठीक है गाइस, तो ये वाला जो है सर आंसर शायद पीछे बी दिया है. आंसर जो है बी दिया है और तुम्हारा मतलब तुम बोल रहे हो कि जो है So दोनों में B ही होगा, right? एक मिनट देख लेते हैं ना डिग्री कैसे रहेगा. एक मिनट देख लेते हैं, ग्राफ ही प्लॉट हो जाएगा ना. कम होगा ये तो है, अवे जा रहा है. एट एनी टाइम टी देखो किसका स्पीड डबल है. So at any time t V relative will be say like equal, right? Constant. स्पीड ऑफ द सोर्स डबल है ना जय. तो हाँ सर, तो ये x डिस्टेंस पे होगा तो ये 2x पे होगा. और ये हो गया आपका ये ऐसा ये एंगल थीटा 90 माइनस थीटा. किसी और इंस्टेंट पे अगर मान लो ये वाला y है तो ये वाला कितना होगा? 2y. तो अगेन एंगल तो सेम ही रहेगा. तो ऑलवेज लाइन ज्वाइनिंग देम के अक्रॉस जो एंगल्स है सेम ही है. एंगल सेम है, ये एंगल हमेशा सेम है थीटा नॉट. एंड रिसीडिंग अवे f dash f naught c रिसीडिंग अवे ओके सर माइनस कांस्टेंट ही रहेगा. सॉरी सर मैं है ना. और ये कितना हो जाएगा 2VO से दिस इज थीटा नॉट c और ये भी क्या जाए अवे जा रहा है प्लस VS cos थीटा cos 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा नॉट हो जाएगा. गाइस ये वाला ठीक है ना. हमेशा ये एंगल सेम ही रहेगा तो कांस्टेंट कम वैल्यू होगी कांस्टेंट होगी. ओके गाइस फिर नेक्स्ट So 47th. 47th. 47th में जो है you have a stationary sound source frequency 334 and a stationary observer are placed near a reflecting wall move away from the source. The apparent frequency बतानी है. Oh,
तो stationary sound source, or you have the observer stationary, reflecting surface. If the velocity of the sound is itna, the apparent frequency of the echo, ये वाला, the apparent frequency for the echo heard by stationary observer. So इसको कैसे करेंगे? पहले तो wall इसको रिसीव करेगा, तो frequency received by the wall क्या हो जाएगा? Frequency received by the wall guys कितनी आएगी? Observer moving away, no? F0 C minus VO. Now wall will become the source. अब wall फिर release करेगा ना इसके लिए. Guys, apparent frequency अपन को observer के लिए बतानी है. तो F observer, this will become source moving away. ये अभी जा रहा है सोर्स C प्लस, ये जो है गाइस कितने स्पीड से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड. दिस इज 2 एंड दिस इज 2 हियर. चलिए वैल्यू यहाँ रख लेते हैं. So guys, क्या आएगा आंसर? कितना आ रहा है इसमें से? So around 330, like 329.9. 329.9. आंसर प्लीज चेक कितना है? ओके ओके ठीक है भाई, ये तो हो गया 47. ये समझ. नेक्स्ट कौन सा था? Sir, 51st. So I had doubt in it, but now it's clear. 51st क्लियर है. ओके Sir, I have a doubt. 51 बताना है. ओके ये बाकी तो आ गए थे ना बीच में, और कुछ नहीं है. 51 सीधा. 51 में sounding body of negligible dimensions, frequency is dropped from a height. During its fall, it passes through a balloon moving upwards. The constant velocity of 2 meters per second. After it started to fall, the difference between the जो है frequency observed by the man in the balloon just before and just after crossing the body. Oh, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 51 के लिए ये बैलून, so 51 के लिए बैलून ऊपर जाता हुआ. So इसकी frequency is dropped during the fall. The velocity 2 meters per second. बैलून जो है ऊपर जा रहा है. The man in the balloon just before and after the body. So just before उसकी velocities का कुछ idea है क्या guys? During its free fall interval. Sir, GT. उसकी velocity जो है कितनी? Sir, G into time. टाइम नहीं given है ना. तो 1 सेकंड के बाद भी. Oh, sorry. Okay. ठीक है. So हाँ ठीक है. 1 second after the start. हाँ तो भाई ठीक है. ये हो जाएगा towards after 1 second v is equal to u plus 80 कर दो. ये 10 हो जाएगा, मतलब 10.
ये सोर्स, हाँ सोर्स जो है कितने से ज्यादा हुआ, 10 से आता इधर 10 मीटर पर सेकेंड, फिर क्रॉस कर गया तो 10 मीटर पर सेकेंड से अवे, 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे रिसीडिंग अवे, तो एफ डैश है ना, बिफोर इट क्रॉसेस, दिस इज इक्वल टू जो है एफ नॉट, ऑब्जर्वर सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, सी प्लस 2 सी माइनस 10, तो ये तो बिफोर हो गया गाइस। आफ्टर क्या होगा, दोनों अवे जाते हुए एफ डैश आफ्टर, तो एफ डैश आफ्टर की वैल्यू गाइस क्या आएगी, C minus 2 divided by C plus 10. Yes. C minus 2 divided by C plus 10. Correct guys, Yala? Yes, sir. 51. Okay. Next one. So what next one, sir? So 52nd. 52nd. 52nd में source of sound, wind is blowing from source to observer. Wind जो है source से observer की तरफ जा रहा है with velocity u. Okay, wind ऐसे जा रहा है, wind is going with velocity u. Speed of the sound with respect to c, the wavelength of the sound detected. Oh, wavelength बता दिया, ठीक है। तो wavelength जो होगा, दो वेव्स के बीच का गैप क्या हो जाएगा, पहला वेव रिलीज करेगा, दूसरा वेव एक टाइम पीरियड के बाद, लेकिन अभी स्पीड क्या जाएगी, c प्लस यू इंटू टाइम t नॉट, c प्लस यू t नॉट को 1 बाय f नॉट, और ये वाला तो लैम्डा डैश c प्लस यू बाई f नॉट। आंसर इसका इज इट a? Yes, sir. It's A. Okay, okay. 52 हो गया, फिर next. So this was the last question. Oh, this was the last one. चलो भाई ठीक है, एक्सरसाइज 2 पे चलते हैं। Yes, students, हाँ एक्सरसाइज 2, Also 21st. एक्सरसाइज 2 में Sir, can you do 12 and 14 also? okay, okay. Exercise 2, 12, 14, 21st. Yes, Jay, huh? Can you do 28? 28. 43. सर आपको 21st का जो पैरा है वो एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो, मुझे समझ नहीं वो। And sir, even that question 36 onwards, that graph question, can you just once explain one? Oh, Yes, I'm having a little doubt in that graph question. last question कौन सा वाला? Which one? Sir, 36 to 41 वाला graph question. 36 to 41. Okay. $29 and $33, sir. 29. So question 4. Question 4. 35. 35. 15. 15. चलो 43. वो कौन सा? 43. 43. Yes, sir. चलो पहले फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाला कैसे कैलकुलेट करेंगे? सडन मूवमेंट ऑफ फोटोग्राफ ऑफ स्ट्रिंग
निकालना है, then the points true regarding the P, Q, R and on the string. Okay. So कैसे निकालेंगे P, Q and R का? डिस्टेंस सेम है क्या ये वाला Q and R? तो Q and R का डिस्टेंस अगर सेम है भाई, ओ इसमें जो है पार्टिकल का जो है फोर्थ के लिए पार्टिकल तो अपनी जगह रह के ऊपर नीचे हो रहे होंगे, पार्टिकल का वेलोसिटी ट्रांसफर होगा। सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पे आएगी? स्पीड सबसे ज्यादा स्पीड मेन पोजीशन। हाँ सर, सबसे ज्यादा स्पीड मेन पोजीशन होगा तो मतलब स्पीड वीपी हाईएस्ट होगा। ठीक है, अब जो है क्यू एन आर, सो क्यू एन आर से क्या बेस उसका डिस्टेंस तो सेम ही है ना, जैसे हाँ यस सर, they have given the equal distance. डिस्टेंसेस सेम है, मतलब जो यहाँ से और ये कर्व तो सिमेट्रिक ही होता है, साइनसॉइडल कर्व, तो ये डिस्टेंस अगर सेम है तो ये डिस्टेंस सेम है, मतलब ये डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा और क्या, राइट। और ये डिस्टेंस सेम हो गया तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल ओमेगा टाइम्स स्क्वायर एस जमी है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा इससे आंसर? सर लेकिन वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ओह, यू आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी। स्पीड का तो एक मैग्नीट्यूड वाला हो गया, वेलोसिटी के लिए टेंजेंट क्या फॉर्मूला आता है यार? vp is equal to minus v wave times slope है ना, माइनस दोनों के सेम है, v wave और स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करो, यू ड्रॉ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, दोनों का स्लोप कैसा आएगा? सेम। यस सर, स्लोप सेम तो वेलोसिटी भी साइन भी सेम हो जाएगा यार तो। यस सर। चलो ये तो गया फोर्थ के बाद नेक्स्ट कौन सा है? 12 में स्टैंडिंग वेव दिया हुआ है of length L shows 2 nodes plus those 2 at the ends. Okay, तो 12th के लिए क्या क्या दिया हुआ है? जो है स्टैंडिंग वेव एम्पलीट्यूड स्ट्रिंग has shows 2 nodes plus 2 at the ends, ये दो हैं ही और दो और हैं, 2 nodes plus 2 at the ends। कितने लूप्स हो गए? 3 लूप्स। 3 लूप्स हो गए। अब जो है इक्वेशन बतानी है स्टैंडिंग वेव की कौन सी होगी, और x इक्वल टू 0, जैसे स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन कैसा होता है? y xt amplitude as sinusoidal function of x into sinusoidal function of time। so यार x इक्वल टू 0 पे नोड है, मतलब ये क्या आ जाएगा? a sin kx, साइन वाला फंक्शन आएगा। तो आप इसके बेसिस पे किसको किसको रिजेक्ट कर सकते हो? बी एंड सी। सो बी एंड सी तो रिजेक्ट हो गए, तो x इक्वल टू 0 इज नोड, और x इक्वल टू 0 जो नोड में है, बी एंड सी रिजेक्ट हो गए क्योंकि x इक्वल टू 0 पे उसके अकॉर्डिंगली तो मैक्सिमम आता है, एंटी नोड। अब कौन सा होगा करेक्ट करने के लिए? ये देख लो यार, ये वाला 3 लैम्डा बाई 2 इज L, तो L इज इक्वल टू 2L बाई 3, K इज 2 पाई बाई लैम्डा, तो 3 पाई बाई L इज K। तो भाई कौन सा होगा A एंड D में? डी। D, यस।
k की वैल्यू आ गई, तो ये हो गया k की वैल्यू 3 पाई बाय l। चलो फिर आफ्टर ये तो हो गया 12th। 15th, a clamp string is oscillating in nth harmonic। Sir, 14th भी डाउट। 14 डाउट था। 14th के लिए a string is fixed at both ends, vibrates in resonance mode with a separation of 2 centimeter between two consecutive notes. So lambda by 2 is 2 centimeter, the lambda is 4 centimeter. For the next higher resonance frequency, this separation is reduced to 1.6 centimeter, fixed at both ends. So जो है यार इसमें ऐसा कर लेते हैं क्या, नहीं तो देखो पता नहीं कितने लूप में वाइब्रेट हो रहा है, तो पहले वाले में n into जो है lambda by 2, तो lambda by 2 तो 2 सेंटीमीटर हो गया है, is the length of the string। फिर सेकंड केस में नेक्स्ट हायर मोड है, मतलब n+1 into 1.6 is equal to n। क्या है क्या n एलिमिनेट करना पड़ेगा, देखो इससे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एक हायर फ्रीक्वेंसी होता है, एक लूप और बढ़ जाएगा, n+1 और इनटू गाइस से आ रहा है आंसर 14th आ गया सर 8 सेंटीमीटर। 15th, clamp string is oscillating in nth harmonic। nth harmonic मतलब n loops हो गए, okay। nth harmonic n loops, the total energy of the oscillation will be n square times that of the fundamental frequency. Total energy will be n-1 square. Average kinetic energy of the string over a complete cyclone is half of the total energy of the string, okay। So guys, कैसे निकालेंगे एनर्जी वाला? इसका एनर्जी का क्या होता है यार फॉर्मूला? एक वेवलेंथ की एनर्जी में कितना आता है? एक वेवलेंथ में एनर्जी तो उससे हमने किया था ना, एक वेवलेंथ का टोटल एनर्जी आता है हाफ म्यू लैम्डा मास हो गया a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसा हो गया, ये तो टोटल आता है। अब एक स्टैंडिंग वेव में क्या होंगे, ऐसे होंगे दो, तो टोटल एनर्जी 2 हो जाएगी, लेकिन एक एक लूप का लेंथ निकालना है, फिर आधा मतलब यही बन जाएगा। तो एक एक लूप की एनर्जी ऑफ ईच लूप, energy of each loop is half mu lambda a square omega square। So फिर यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है टोटल एनर्जी निकालनी है। So बाकी सब चीजें तो सेम है। So गाइस ये वाला कैसे आएगा, यहाँ पर mu lambda एनर्जी ऑफ ईच लूप, nth हार्मोन में जाएंगे, फ्रीक्वेंसी n टाइम्स हो जाएगा। गाइस कैसे करोगे? जैसे इसमें ना एनर्जी ऑफ ईच लूप गाइस ये आएगी ना, एनर्जी ऑफ n लूप्स कितनी हो जाएगी? Energy of n loops will be n half mu lambda a square omega square।
तो फंडामेंटल के लिए क्या होगा यहाँ पर? फंडामेंटल के लिए गाइस, फंडामेंटल मोड के लिए टोटल एनर्जी एन की वैल्यू तो 1 रखोगे, ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट, कितना हो जाएगा? हाफ म्यू लैम्डा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये तो फंडामेंटल। और एन लूप्स के लिए कैसे रखेंगे गाइस ये वाला? nth हार्मोनिक के लिए, nth हार्मोनिक के लिए टोटल एनर्जी हाफ म्यू लैम्डा। गाइस nth वालों के लिए क्या होगी? n सर n टाइम्स फंडामेंटल। यस, ये म्यू बाई 2 लैम्डा की जगह c बाय f a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। n is what? n f naught। सो या फिर ऐसा बोलो ना, देखो इसको ऐसे करो, जैसे ही आपका आया भाई दूसरा nth हार्मोनिक मोड में क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी n टाइम्स होगा, वेवलेंथ n टाइम्स से कम हो जाएगा, n हाफ म्यू लैम्डा की जगह क्या होगा? लैम्डा नॉट बाई n, और ये n टाइम से बढ़ जाएगा। सो कितना हो गया फिर यार रेशियो टोटल एनर्जी और इनिशियल वाले में क्या कंपैरिजन है? कौन सा फैक्टर आ रहा है? n square। n स्क्वायर आ रहा है ना गाइस? क्या है आंसर? n स्क्वायर। यस ओके, फिर सी पार्ट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग ओवर कंप्लीट ऑसिलेशन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ टोटल एनर्जी। एवरेज वाला तो हमने डेराइव किया था। वो तो डिराइव किया था, ठीक है। आंसर ए एंड सी। यस हाँ, प्लीज टेल। सर आप 16 भी सॉल्व कर सकते हो। 16th वाला ना? हाँ ओके। यस 16 में फिगर शोस, फिगर कहाँ चला गया? हाँ, फिगर शोस stationary wave between 2 points P and Q, which point 1 and 2, which points 1, 2 and 3 are in phase with point X? X कौन सा हो गया? Oh, चलो भाई ठीक लेते हैं ये वाला। So 16th में, जो है ये जो पॉइंट्स हमने लिखे थे, में ये वाला पॉइंट फिक्स पॉइंट्स P and Q, ये वाला P Q, X कहाँ का पॉइंट है? X ये वाला पॉइंट। अरे नोड आ गया और ये पॉइंट 1 आ गया, तो फेस कितना आ जाएगा यार? पाई का चेंज आएगा। और ऑल द पॉइंट्स बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स दे आर इन फेज। 2 कहाँ पे है यार? 2 दूसरे वाले गोले में है ना? ओ यस, 2 यहाँ पे है ना? ठीक है, 2 वाला तो इस गोले में है। यस हाँ, 2 and 3, तो ये वाला फेज में होगा भाई इसके साथ ना, ये और ये फेज में होंगे, राइट? आंसर क्या होगा? 1 नहीं होगा ना, अक्रॉस द नोड देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई, पाई मतलब आउट ऑफ फेज। ओके सर, गॉट इट। हाँ 16। यस स्टूडेंट्स, हाँ 16 के बाद नेक्स्ट सर 21st। सर x और 1 2 3 वो वेव पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम लोग उसके फेज के बारे में बात कर रहे हैं। नो, हमने स्टैंडिंग वेव्स में पढ़ा था ना, अक्रॉस द नोड्स, करेक्ट? हाँ सर मैं समझा, तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो वेव का पार्ट नहीं होना चाहिए। वेव का ही पार्ट है स्टैंडिंग वेव। सर पर वो पॉइंट्स तो मतलब वेव पर नहीं। ओह नो, ये पॉइंट ऐसे x है, मतलब इट कैन गो अप हियर, इट कैन गो डाउन हियर। ओके सर, ओके हाँ? यस हाँ,
सर मुझे एक्चुअली 36 टू वो 36 टू 41 क्वेश्चन में एक छोटा सा डाउट था सर। ये क्वेश्चन में हम लोग ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते ना कि वीपी इक्वल्स माइनस ऑफ स्लोप टाइम्स वी वेव। VP is equal to minus of वो तो ट्रैवलिंग वेव के लिए था। ट्रैवलिंग वेव के लिए जनरल फॉर्म था ना, तो जनरल यहाँ आया था। सर वो हमने स्ट्रिंग्स के लिए निकाला था ना नो नो नो, y is equal to f of t minus x by v, और फिर dou y by dt dou t, और फिर dou y by dou x, क्यों है ना मनवी? So, but that isn't applicable for standing wave, right? Because standing wave is not like y is equal to f of t minus x by v of one. अरे यहाँ स्टैंडिंग वेव कहाँ आ गया? इसमें 36 में कौन सा था स्टैंडिंग वेव? यहाँ पे जय स्टैंडिंग वेव क्यों बोला, समझ नहीं आ रहा। So I didn't so उसका डाउट स्टैंडिंग वेव का था ना? नहीं, मेरा डाउट था कि वीपी इक्वल्स माइनस टाइम स्लोप वी वेव यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि नहीं, मेरा डाउट था। यस यस यस, व्हाई नॉट? तो अगर वो यूज कर रहे हैं तो 40th एंड 41 का आंसर मुझे कम्प्लीटली ऑपोजिट आ रहा है। मतलब पीछे जो दिया उसका मुझे कम्प्लीटली ऑपोजिट आ रहा है। सर अगर हम लोग अब वीपी इक्वल्स माइनस टाइम स्लोप वी वेव कर रहे हैं तो एंड हमें मैक्सिमम कंप्रेशन एंड रैरेफैक्शन वाले पॉइंट्स निकालने, तो मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालने, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वहाँ पे 0 हो रहा है तो स्लोप भी 0 हो रहा है, तो उससे तो आंसर ई ए एंड आई आ रहा है। तो मतलब कंप्रेशन रैरेफैक्शन ये 3 पॉइंट्स में से होंगे, बट मतलब क्लास में हमने किया था उधर सी जी एंड के आया था। ओके 39th वाला यू आर सेइंग ना, 40th एंड 41। अशोक ऐसा किया था ना अपन ने, देखो अगर s बराबर s नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये साइन का फंक्शन, this is equal to s naught sin omega t minus kx, साइन का फंक्शन है, और इसको ऐसे पकड़ते थे ना, ये मीडियम हो गया। अब यहाँ पे क्या आता था, मैक्सिमम कंप्रेशन। हाँ सर, मुझे वो समझा था कि वहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन है, रैरेफैक्शन हो रहा है सर, बट अगर वीपी इक्वल्स माइनस वी वेव टाइम स्लोप करेंगे तो उससे आंसर अलग आ रहा है। नहीं अशोक, जैसे VP इज इक्वल टू माइनस वी वेव टाइम स्लोप करोगे तो उससे क्या आएगा? सर कंप्रेशन पार्टिकल आएगी ना सर। हाँ, कंप्रेशन रैरेफैक्शन पे तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 होगा ना। नो 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 नो, कंप्रेशन रैरेफैक्शन में तो हमने ऐसे किया था। ओ यू आर सेइंग कि यहाँ पर नहीं, कंप्रेशन रैरेफैक्शन में तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम हो गई, ये मेन क्वेश्चन है ना। ओ अच्छा, साइन का फंक्शन कॉस हो जाएगा ना सर? हाँ हाँ, वो कॉस का फंक्शन है ना। हाँ 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 हाँ, ओके ओके अशोक, ओके हाँ। ये कौन सा कर रहा था यार मैं, 16th के पहले कौन सा था गाइस? 16th के पहले कौन सा कर रहा था मैं अभी? It was 21st. 21st। मैक्सिमम इंटेंसिटी एट डी, एक की इंटेंसिटी कितनी है भाई? आई नहीं क्या क्या दिया है सर, आप एक बार ये पैराग्राफ पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके हाँ, ये क्विंकेस ट्यूब जैसा हो गया है ना। A source generated I naught और divided into 2 parts। ओके, तो यहाँ से जो बंदा चिल्ला रहा है I naught उसने भेजा और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी, I naught by 2, I naught by 2। ठीक है, अब जो है so Maitreya, which one was the doubt here? सर मुझे मतलब समझ में नहीं आया था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। Oh, How to proceed with the whole paragraph? नहीं ये तो हो गया ऐसा,
यहाँ से ये बंदा चिल्लाया, यहाँ से दो वेव्स, एक पीला वाला और यहाँ से नीला वाला, एंड हियर इंटरफेरेंस। मैत्रेय ये ठीक है ना? यस। हाँ, सो पार्ट डिफरेंस मैत्रेय क्या होगा पीले वाले के लिए? Yes. Circumference का 3/4 और उसका 1/4. Yes. So this is 3/4 minus 1/4 of 2 pi r. So basically you are getting the value difference कितना आएगा? Pi r. Correct? Yes. So pi r आ गया. अब जो है if maxima is detected, that means if maxima is detected, so this is equal to what? N lambda. So lambda की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Pi r by n. करेक्ट है ना? ओके ओके सर। और 19 के लिए क्या करोगे? मिनिमा के लिए 19 हो गया, सॉरी 20th के लिए पार्ट डिफरेंस को किससे इक्वेट कर दोगे? 2n - 1 या 2n + 1 बाय 2, जैसा भी देखो यार। यस ओके सर। और 21st में रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालनी है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? I1 + I2 2√I1 I2 cos phi। मैक्सिमा के लिए और एक की नीला वाला पीला वाला दोनों की इंटेंसिटी I/2 है। और हमने तो किया था ना, if I1 = I2 = I0, तो मैक्सिमा कितना होता है? 4 times I each। कल ही तो किया था वे ऑप्टिक्स हाँ में। यस सर, हाँ तुम्हारे क्लास में पढ़ाया था ना। सो आई एक्चुअली I0/2 भूल गया था, इसलिए लाइक I took I0 इसलिए 4 I0 आता था सर। ओके ओके। ये सर आप I0/2 के साथ रिपीट कर सकते? अरे ये बंदा यहाँ से चिल्लाया और ये डिवाइड हो गया, नीला वाला पीला वाला। ओके सर, सॉरी सर, मैंने पढ़ा नहीं ठीक से। गॉट इट सर। चलो ठीक है भाई, और बताओ आफ्टर 20 कौन सा था गाइस? नेक्स्ट वन Sir, I think 24th. 24, okay. So second Smith, second overtone of an open organ pipe and closed pipe has same frequency at a given temperature. It follows that second overtone of open organ pipe. ओपन ऑर्गन पाइप का सेकंड ओवरटोन क्या होगा भाई? 2V0 नहीं 3V0 by 2LA is equal to सेकंड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड कितना होगा? क्लोज वाले के लिए 5 ना, 5V0 by 4LB क्या है ना? नहीं, और दोनों इक्वल ना गाइस यार। सो कितना आएगा इसका आंसर? So will you take exercise 3 doubts today? और टाइम कितना हो रहा है यार? और only For 10 minutes sir. ओके ओके ठीक है गाइस, आप लोगों का नेक्स्ट इसके बाद लेक्चर है ना? ठीक है, मेरा भी अभी। Sir, you will take the doubts in the next lecture, right? Exercise 3. हाँ नेक्स्ट वाले में ले लेंगे, चलेगा? इज दैट ओके? हाँ आज ये वाला कर लेते हैं, नेक्स्ट वाले में करते हैं। ठीक है Sir, so you will take it in the next regular lecture or the next doubt lecture? नेक्स्ट वन जाए, नेक्स्ट वाले में कर लेते हैं। मतलब doubt lecture next week. नेक्स्ट वीक डाउन लेक्चर में करते हैं। Okay sir. हाँ
चलो हाँ, ये तो गाइस इससे आएगा क्या यार, ये वाला आंसर आएगा क्या इससे? जो फंडामेंटल ये तो ये हो गया आपका, और लेंस का रेशियो क्या आता है भाई इससे बताओ, लेंस का रेशियो, the length of A and B is 4:3 मैच हो रहा है क्या? It's not. नहीं ना, ठीक है, A तो नहीं हो रहा, और fundamental frequencies of A and B, fundamental frequencies of A and B क्या आ गया, ये वाला 3f0, और ये कौन सा हो गया 5f0, fundamental frequencies of A and B. C मैच हो रहा है, C हो रहा है यार, B नहीं आ रहा, fundamental frequencies ये मैच नहीं हो रहा है ये ना, करेक्ट ना? ये गाइस थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, ठीक है याद है ये आंसर क्या क्या दिया हुआ है? C and D. C and D, So only C. okay, C and D आएगा क्या इसमें? फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ मैच हुआ क्या ना, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए कितना हो जाएगा? F0 A अपॉन फर्स्ट ओवरटोन ऑफ बी कितना आएगा? गाइस फर्स्ट ओवरटोन ऑफ बी हमो क्या आएगा फर्स्ट ओवरटोन ऑफ बी? सर So 24th का आंसर C और D है। नहीं ये वाला, हाँ ये फर्स्ट ओवरटोन ऑफ A2 होगा ना ये वाला? यस सर, 3 Okay. तो दूसरे में 3 है। हाँ नीचे वाले में 3, इसका आंसर क्या आएगा? 2/3 और इधर क्या आ जाएगा 5/3 आ रहा है क्या? 10/9 आ रहा है यार आंसर। यस सर। ओके ओके ठीक है, ये वाला सी एंड डी मैच हो रहा है। चलो भाई नेक्स्ट वन सर 28 में इक्वेशन ऑफ wave disturbance is given by this. Y is equal to 2/100 और cos pi/2 प्लस साइन कर देते हैं क्या? इसको साइन कर देते हैं। cos पहले तो इसको लिखते हैं 10πx और ये वाला जो है साइन 50πt 90 प्लस थीटा cos थीटा कर देते हैं। अब जो है k निकाल सकते हैं, k इज इक्वल टू सर नेगेटिव साइन आना चाहिए ना? यस नेगेटिव वाला कौन सा? सर बिकॉज़ cos pi/2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ओके ठीक है, इट डजंट मैटर, हमें तो जो है वो तो पार्टिकल का पोजीशन बता रहा है ना। ओके सर यस। हाँ अभी जो है फिर k is 2π/λ कर लो, 2π/λ को क्या लिखोगे 10π है ना, और 50π को ओमेगा कर दोगे तो ये आ जाएगा, तो वेव स्पीड भी आ जाएगी, k पता है ओमेगा पता है और आपके पास रिलेशन kv इज इक्वल टू ओमेगा। और दूसरा कौन सा है यार यहाँ पर? वेवलेंथ आ गया, स्पीड और एंटाई नोड। हाँ यार ये तो x इक्वल टू 0 तो एंटाई नोड हो गया, x इक्वल टू 0 पे तो मैक्सिमम आ गया। तो इसका प्लॉट ओरिजिन पे ये ऐसा एंटाई नोड, ओरिजिन पे यू हैव एंटाई नोड,
निकालना क्या है यहाँ पर? How did you calculate? Here are cos pi x. So amplitude as a function of x में x equal to 0 मतलब Oh, maximum it's the cost of function. Okay, so okay, so अब जो है भाई ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यार? ये वाली लैम्डा बाई 4. लैम्डा बाई 4 नोट्स निकालना है ना. लैम्डा बाई 4 ये 3 लैम्डा बाई 4 got it, so now. और ये वाला 5 लैम्डा बाई 4 और एंटाई नोट्स निकालना है. एंटाई नोट्स कहाँ पे होगा? यहाँ पे एक हो गया. So sir, n lambdas long. ये लैम्डा हो जाएगा. n lambda by 2, sorry sir. ये वाला नहीं. हाँ लैम्डा. यस 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 यस. ये डिस्टेंस कितना होगा? Lambda by Yes, this will be lambda by 2. This will be equal to again lambda. ऐसा? yes, I got it. Yes, right. Next one. So 33rd. 33rd one. So 29. 29. हाँ, sorry sir. हाँ. अब जो है इसमें the 3 successive frequencies are 425, 595 और 765. ये शायद उसने बताया था क्या? जयशंकर ने बताया था यार. कोई सा भी ले लो. उसने क्या डिफरेंस बोला था? हाँ याद आ गया सर. V naught by 12 वाला ना. हाँ V naught by 12 आता है ऐसे कुछ आता था. Okay. Thank you sir. 595 minus 25 V naught by 12. Okay. Yes. फिर next one. The 33rd. 33rd one. 33rd में कैसे करेंगे समझ इसमें? So we can use the formula, right? हाँ. So इससे अरे ट्रांसमिटेड वेव का तो सेम ही होता है. रिफ्लेक्टेड वेव का बताना पड़ेगा. यस. इससे आंसर मैच हो रहा था. Yes, sir. A and D. ओके. चलो यूज फॉर्मूला और बताओ भाई. नेक्स्ट 35th. 35th तो यार किया था ना एक बार? नहीं. हाँ सर ये किया. 35th तो अपन ने लास्ट क्लास में शायद किया था कभी. ओके. तो ठीक है. इसमें जो है मिड पॉइंट्स ऑफ अ कंप्रेशन एंड सो कंप्रेशन रेरिफैक्शन वाला ना. ओके. ये ऐसा. So this we had compression here, and this is a rarefaction here. Compression, rarefaction. So yes, slope तो same ही होगा यहाँ पर. Magnitude, correct? Not slope of the tangent. S is equal to S naught. है ना ये वाला? चलो ठीक है. स्लोप सेम होगा. और particles of air in the midway are stationary between C and R. Yes, C और R के बीच में यहाँ slope of the tangent is 0. Velocity is 0. Guys, you all understood now? और आपको प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा गाइस? प्रेशर कंप्रेशन और रेरिफैक्शन में कितने का डिफरेंस आएगा? 2 BKS नॉट. कंप्रेशन में कितना हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये ना PA प्लस P नॉट. और रेरिफैक्शन में
PA minus T naught. Compression minus rarefaction. 2 P naught मतलब 2 B K S naught. वैसे वाला आ जाएगा ना? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वही आएगा ना, ds by dx कर दो, s नॉट के बाहर ओमेगा d minus kx, करेक्ट? Yes. और So, बताओ, हाँ sir, if you have any recording of exercise 4 and 5 discussion, can you send it, please? एक मिनट, हाँ मैं एक बार चेक, यस मैं देख लेता हूँ किसी बैच में, मैं कर दूंगा। हाँ सर, okay, thank you. ठीक है गाइस, we will continue the next class, हाँ? सर आप एक बार वो ग्राफ वाला डिस्कस कर सकते हैं? Which graph? सर वो 36 क्वेश्चन का 36 वाला, उसमें ग्राफ के पॉइंट्स यू आर आस्किंग क्या? Yes sir, like what do they mean by moving in the direction of wave and stuff, so वो confusion हो रहा है। 36 में ना, so जैसे वो समझ was saying ना, VP is equal to minus V wave times slope, ये नेगेटिव साइन तो है ही ना, वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव। तो अगर जो है ना स्लोप पर देखना पड़ेगा, तो अबाउट विच पॉइंट यू आर टॉकिंग अबाउट, बी या सी, इस पॉइंट्स पे देखना है। जैसे मान लो कोई भी पॉइंट है, मान लो से सी पॉइंट या बी पॉइंट, बी पॉइंट के लिए क्या आएगा योर डायरेक्शन, स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी बी पॉइंट पर, करेक्ट ना? Yes sir. तीनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब पीछे जा रहा है, द डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेव। अच्छा ओके। ऐसे कंपेयर करना पड़ेगा, राइट? And so the points of maximum compression and rarefaction, जो शायद से मेरा आंसर मैच नहीं, आप वो भी बता सकते हैं? वो हमने किया था, जैसे याद है, ये आपका 40 का आंसर तो C and G पॉइंट होना चाहिए ना? नहीं, ये देखो हमारा ये आ गया, ये ऐसा आ रहा है, इस पॉइंट पे देखो, सी पॉइंट पे देखेंगे, सी पॉइंट पर इसके पहले वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव, मतलब अपने पोजीशन से आगे चला गया, और यहाँ का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, यस। ये देखो जिससे पीछे जा रहा है, ऐसे यहाँ पर ऐसा है ना, सो यहाँ पर जो है ये कैसा है, किस साइड गया, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, अब मतलब अपने पोजीशन से किधर गया, तो राइट में जाना चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, ओके, यू आर सेइंग अपने पोजीशन से राइट पे गया, ओके, और फिर दूसरा वाला लेफ्ट में जाना चाहिए, जिसके जस्ट राइट वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो सर मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा ना इस पॉइंट पे। एक मिनट, जो क्या कुछ रीजन है क्या, एक मिनट, यहाँ पर वेव कैसे जा रही है, longitudinal harmonic wave traveling along the negative x-axis। तो लाइक मतलब आंसर, लाइक मैंने आंसर सी एंड जी मार्क किया, पर उन्होंने आंसर सी एंड के दिया सर, तो उसमें हम कंफ्यूज। यू आर सेइंग जी भी होना चाहिए? यस सर, आंसर के नहीं होना चाहिए, बिकॉज सर के इनकम्प्लीट है ना, बिकॉज उसके लेफ्ट साइड में कर्व है पर राइट साइड पे कुछ नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते कंप्रेशन हो रहा है। उन्होंने क्या दिया, सी एंड जी, उन्होंने ए एंड डी दिया, ए एंड डी of for maximum compression। A पॉइंट मतलब A ऑप्शन मतलब C है, यस डी ऑप्शन ए है, पर जी होना चाहिए ना सर। जी पे देख लेते हैं, चलो जी पे क्या हो जाएगा, यहाँ का नेगेटिव मतलब अपने पोजीशन से इधर चला गया, पॉजिटिव मतलब अपने पोजीशन से आगे गया,
ओह अच्छा, ओके सर। एंड सर फिर के कैसे आएगा ऑप्शन में? पर सर के का तो राइट साइड कुछ नहीं दिया ना। ओ मतलब यार ऐसे अज्यूम कर रहे हैं। अच्छा ओके सर, तो फिर ठीक है सर, गॉट इट सर। ठीक है गाइस, चलो फिर यस नेक्स्ट क्लास में सर, कंटिन्यू नोट पे सर रेयर फ्रैक्शंस आता होगा। ओके सर, ठीक है, बाय गाइस। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. हाँ, Thank you, थैंक यू sir. स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।